Hello students, here we are again with the topic of dissolution of partnership firm. This is the last topic of partnership accounting of class 12. Students, there is a big difference between partnership firm and partnership. There is a big difference between partnership and partnership firm. Partnership means the business relation with among two persons, two or more persons. But partnership firm which they create for business purpose. ठीक है, तो इसी तरीके से there is a difference between dissolution of partnership firm and dissolution of partnership. In case of dissolution of partnership, business remain continues, business लगातार चलता है. There is change of existing ratio of partners or admission of partner or retirement or death of a partner. In case कोई एक पर्सन, कोई एक बिजनेस में कोई नया पार्टनर हम एडमिट करते हैं, कोई पार्टनर छोड़कर चला जाता है, या एग्जिस्टिंग जो पार्टनर हैं हमारे, उनका जो रेशो चेंज हो रहा है, उस केस में हम बोलते हैं जो हमारा एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज. दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. मींस जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म होकर नई पार्टनरशिप बन गई है. बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन. In case of partnership firm, dissolution of partnership firm, the business of the firm closed down and the books are finally closed. In case of dissolution of partnership, books are not finally closed, the business remain continue. But in case of partnership firm, business is closed down and books are finally closed. Dissolution of partnership कब होता है? जब एक पार्टनर एंटर हो रहा है बिजनेस में और एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, या जो पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग करंट एग्रीमेंट है वो चेंज हो रहा है. ठीक है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द बिजनेस ऑफ द फर्म क्लोज डाउन, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यूज. फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, books are finally closed, but in case of dissolution of partnership, books are not finally closed. Dissolution of partnership firm, assets and liabilities are realized. Means assets and liability are realized means क्या है कि जो हमारी assets हैं उसे हमने सेल कर दिया है और वहां से जो पैसा मिला उससे हमने अपनी liability पे कर दी है. When we are closing our business, it is our moral duty to pay out of outside liabilities first, then we will sell our assets and pay off the liabilities. But in case of dissolution of partnership, assets and liabilities are only revalued, not sold. Okay, not sold, these are only revalued. In this case we prepare a realization account for sale of assets or realize the liabilities. We prepare realization account. But in case of dissolution of partnership, we prepare revaluation account, as we learned in chapter admission of partner. Clear? Here are some methods prescribed by Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932 ने हमें कुछ मेथड बताए हैं, कुछ लॉ हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म को क्लोज डाउन कर सकते हैं. देन सेक्शन 40 स्टेट्स वॉलंटरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. वॉलंटरी डिसोल्यूशन व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर, एक को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर आर रेडी टू क्लोज डाउन द बिजनेस, बिजनेस को बंद करने के लिए रेडी हैं फॉर एनी पर्पस, किसी भी रीजन से टर्म क्लोज हो गई उनकी, जिस टर्म के लिए बिजनेस बनाया था, जिस मोटिव के लिए बिजनेस बनाया था वो पूरा हो गया, या बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल नाउ. ठीक है. तो सेक्शन 40 क्या कहता है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन, जब एक को छोड़कर सभी पार्टनर या सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन. सेकंड वन इज सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन मींस आपको डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा. देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन. कंपल्सरी डिसोल्यूशन इज दैट
When a firm business is fined illegal, जब एक फर्म इलीगल काम करती है और द टाइम एक्सपायर्ड मींस जिस टाइम पीरियड के लिए हमने फर्म बनाई थी वो एक्सपायर हो गया है, और ऑल पार्टनर्स एक्सपेक्टिंग वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एक को छोड़कर सभी पार्टनर क्या हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं, देन इट इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हमारी फर्म बंद करनी पड़ती है, दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी डिसोल्यूशन. Dissolution by agreement. Dissolution by agreement means when all partners are agree, all partners, not one partner, all partners are agree to dissolve the firm when they find it not longer profitable. It is called dissolution by agreement. Dissolution by notice. जब एक पार्टनर को लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तब वो क्या करेगा, एक नोटिस देगा और फर्म को क्लोज करने की रिक्वेस्ट करेगा. डिसोल्यूशन ऑफ बाय नोटिस, सेक्शन 43. सेक्शन 44 डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. इट इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन व्हेन अ फर्म फाइंड इट्स बिजनेस इलीगल और ऑल पार्टनर एक्सपेक्टिंग वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्व or business is not more profitable, then court dissolve the firm. Section 44 states that a court can dissolve the firm by any of reason. जब कोर्ट को लगता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा, अब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं और फर्म इलीगल है, तो वो अपने नोटिस से, अपने राइट से बिजनेस को क्लोज डाउन कर सकती है. ओके स्टूडेंट्स, there is a big difference between dissolution of partnership firm and dissolution of partnership. Okay, now you have to learn yourself difference between realization account and revaluation account. Okay students, then this is your today's topic. In next class we will learn how to prepare realization account, capital account and bank account. In case of dissolution of partnership firm, we have to pay outside liabilities first. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो पे करनी है. उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज, वो हम पे करेंगे. उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर्स लेकर जाएंगे. ठीक है, हो गया क्लियर. जबकि इसमें क्या था, रिवैल्यूएशन के अंदर पार्टनर्स की जो करंट एसेट्स और लाइबिलिटी है सिर्फ उनको रिवैल्यूट किया था. रियलाइजेशन में हमने सारी एसेट्स को सेल करके लाइबिलिटीज को पे करना है. द स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक था थ्योरी का आज. नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट.